रुको 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 मैडम, हाँ क्या नाम है आपका? माय नेम इज भूमिका कल्याणकर। यहाँ पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटी होती है? सर बहुत कुछ होता है जैसे कि डांसिंग, प्लेइंग, गेम्स। आपने किस में पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम गेमिंग। Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, I'm just running from this outside and just I have seen your school. So there's lots of inquiry about your school. I have seen your classroom, I have met your students, and I have met your teacher also. So just tell me about the back and forth about the school, how you started the school, how you started your journey. Please tell us, sir. Very good afternoon, sir. My name is Alka Benjamin and I am the principal of this school. And I started this school in 2016. As I was teacher previously, I was teaching in so many schools, and then this is my passion. Teaching is my passion, so I started my own school, and here we give moral values to students. My aim is to develop the moral values apart from the subject knowledge, and we prepare the students for the future world. Because So, what is the, sorry to disturb you, what is the extracurricular means what you have done apart from the education, like sports and anything? Please tell. apart from the subject knowledge, we give some extracurricular activities to students. We organize sports and games in our school, and we celebrate national festivals in our school to develop national values among the students. Okay. And we also some co-curricular activities in our school, just like speech competition, essay competition, debate competition, GK quiz competition, and we emphasize on the writing and the reading of the students. Okay, ma'am, just tell me one thing. How you means there is so many schools nearby our schools. So what is your X factor of your school? Suppose there is some X factor in your school. So please tell us. So there are so many schools, I know this thing, but we want to give the real knowledge to the students. We prepare them for the future competitive world, for the competitions which they have to face in future. So our teachers are we have very dedicated staff, and they support students, and the atmosphere of the school is very friendly. Teachers are every time they are ready to have the students, and time to time I take the staff meeting in our school. I also guide our teachers and staff members, and we are very friendly in our school. So ma'am, tell me one thing. How many teachers in the school? We have near about 12 to 15 teachers, And what is your strength for all students? Or how many students in your school? and near about 400, approximately 400 students are in the school. And is there any vehicle facility for your school? How many? Vehicle facilities are provided to the students. Van are there, and some tempo travelers are there. Okay, ma'am. So what is your aim for next coming year for the school? We are gradually upgrading our school. Okay. In every session we upgrade, we introduce the new class, and we upgrade our school gradually, and we want to give the best education to the school. Our aim is not to collect the students and to improve the strength of the student in the school, increase the strength of the students in the school. Apart from that, we want to give some good moral values, some good knowledge to students, and the number of the students is not important. I think the knowledge and to prepare the student, that is the more important thing. So ma'am, as you know, my channel is in Hindi and our national language is Hindi also. So just tell the viewers in the short what you think about, what is the suggestion for parents, what is the suggestion for students, anything which you want to share with the viewers in Hindi. Okay, sir. As we know that Hindi is our national language, हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी. हम लोग भी हिंदी का बहुत सम्मान करते हैं, और हिंदी जो है हमारे एक
विचारों को आदान प्रदान करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसलिए हम हिंदी भाषा की भी जो हमारे यहाँ विषय है उसके अंदर हमारे शिक्षक जो हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वो बहुत निपुण हैं। बच्चों को हिंदी भाषा का भी पूरा ज्ञान दिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे राष्ट्र से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा नेशनल एंथम जिसको हम अपना राष्ट्रीय गीत कहते हैं, वो सब भी बच्चों को डेली हम प्रैक्टिस करवाते हैं। और हिंदी में बच्चे वार्तालाप करते हैं, इंग्लिश में भी हम लोग उनकी इम्प्रूवमेंट पे जोर देते हैं, इंग्लिश में भी बच्चे आपस में बातचीत करें। बाइलिंगुअल लैंग्वेज इनको समझाई जाती है। हिंदी जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हम उसे पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी भाषा का भी हम उतना ही महत्व हमारे विद्यालय में दिया जाता है। मैम इनको जी बताइए, मतलब एज ए प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स देखेंगे, जो पेरेंट्स देखेंगे, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप अगर जीवन को अच्छे तरीके से जीना हो, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप क्या शेयर करना चाहेंगे? 2 या 3 पॉइंट जिनको अपन ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। मैं अपने विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के, शिक्षा ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा से हम कोई नौकरी करेंगे या कोई हम है ना पैसा कमाने का माध्यम है। शिक्षा से हमारा एक पूर्ण विकास होता है, हमारा मानसिक विकास, हमारा शारीरिक विकास, समाज में हमें किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे हमें अपने विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त करना है, किस तरह से हम समाज में अपना एक उचित स्थान या अपने आप को प्रगतिशील बना सकते हैं, ये हम शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं। तो बच्चों के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। अभिभावक गण बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको शिक्षा का महत्व समझाएं, उन्हें विद्यालय का महत्व समझाएं। बच्चों को दिन प्रतिदिन बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हों। जैसे बालिका शिक्षा पर आज हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है, तो बालिका शिक्षा जो है वो भी हमारे समाज में बालिकाओं के विकास के लिए, महिला सशस्त्रीकरण के लिए बालिका शिक्षा पर भी हम लोग भी बहुत अधिक जोर देते हैं। लेकिन राइट टू एजुकेशन में क्या परसेंटेज है अपने स्कूल का? सर आरटीई के तहत हम 25% सीट रिजर्व रखते हैं आरटीई के बच्चों के लिए। जब भी सरकार की तरफ से आरटीई का एडमिशन की न्यूज़ आती है या उसका पोर्टल खोला जाता है, तो वो सुरक्षित 25% हम आरटीई के बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। और उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी आगे बढ़ने का अधिकार है, और हमारा पूरा सहयोग रहता है कि आरटीई के तहत जो सरकार ने एक अभियान चलाया है, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। मतलब यहाँ पर आपके एडमिशन के सिस्टम मतलब किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एडमिशन के लिए? सर एडमिशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। एडमिशन फॉर्म भरवाया जाता है, बच्चों के अभिभावक से बात की जाती है, बच्चों का एज देखा जाता है कि किस एज के ग्रुप का बच्चा है, उसे किस कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए और बच्चा कितना जानता है। बच्चे से हम एक छोटी सी वार्तालाप या छोटा सा उसका एक इंटरव्यू लेते हैं ताकि हमें पता पड़ सके कि बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है। उसके अनुसार अगर बच्चे में कोई कमज़ोरी है, हमें दिखता है जैसे बच्चे की राइटिंग ठीक नहीं है, तो हम उसके लेख सुधार पर ज़्यादा काम करते हैं। बच्चा अगर रीडिंग में पुअर है तो हम अपने टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसकी रीडिंग पे आप ध्यान दीजिए ज़्यादा। तो इस तरह से हम एडमिशन बच्चों का लेते हैं। तो 1.5 साल तक टीम की तरफ से मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रैंडमली आपकी स्कूल में आया, मैंने आपके रूम देखे, टीचर से बात की, 10 लाइक की रैंडम विजिट की आपके यहाँ पे, और आपने बहुत सहयोग किया उसके लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं जनता तक पहुँचे और वो आप जान पाए कि इनके आसपास ऐसे स्कूल भी है कि आप रैंडमली भी कभी जाते हो तो सब कुछ व्यवस्थित मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। सर मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरे तरफ से भी, मेरे स्कूल स्टाफ की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे स्कूल का निरीक्षण किया, देखा, जो कुछ भी आपने यहाँ देखा या ऑब्जर्व किया
उसको आप अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे तो उसके लिए मैं भी आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और वैसे भी जो एक मीडिया है वो एक ऐसा माध्यम है कि जो जनता तक, हमें जनता से और जनता को हमारे से जोड़ता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप इस तरह की अगर विजिट करना चाहें तो हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।